Hello students, a very warm welcome to each and every one of you on my YouTube channel, and I'm preparing a series of videos on commerce students who are going to appear in the upcoming CBSE examinations that is going to be held in the month of November. So I have prepared my videos on fundamentals partnerships, and thereafter I am covering the chapter of admission of partner, and also we have covered the valuation of goodwill, what are the types of goodwill, and important calculations regarding to profit, super profit, average profits, and how after the computation of average profit, super profit, goodwill will be calculated. We have covered in our previous videos. So in this video we'll be covering up the new adjustment which will be recorded in the books of account at the time of admission of partner, that is treatment of goodwill. Prior to that, we have read in our previous video that what are the rights of the incoming partner, and what are the ratios, old ratio, sacrificing ratio, and what are the situations, scenarios in which the profits shall be shared in the old ratio, and what are the scenarios in which sacrificing ratio shall be used in order to compute the profit of firms and different partners. So इस वीडियो में हम कवर करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, एंड पूरी वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी रखे हैं जो आपको आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, प्लस कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ क्योंकि हमारे जो MCQ क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको थ्योरी से भी काफ़ी कुछ पूछा जा सकता है, वन वर्ड वन लाइनर MCQs भी हो सकते हैं कुछ, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वही सब चीज़ें। तो चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ, एंड अगर आप टर्म 1 से रिलेटेड कोई भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो अपनी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। आप एक एक करके उन लिंक्स को क्लिक करके उन सभी तमाम वीडियोस को देख सकते हैं, और उनसे जुड़ी कोई भी अगर आपकी क्वेरीज हैं तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। एंड जहाँ तक रही ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात, तो एक वीडियो लेक्चर जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मैंने कवर किया था अभी कुछ दिनों पहले। तो अगर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से पहले आप उस चीज़ को कवर करना चाहते हैं कि गुडविल क्या है, किस तरह से गुडविल का वैल्यूएशन होता है, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट, ये सब अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो के लिंक को क्लिक कर सकते हैं जो कि मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करने वाला हूँ। सो चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। सो सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, द इनकमिंग पार्टनर हु एक्वायर्स हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ the firm from the existing partners brings in additional amount to compensate them for loss of their share in super profits. It is termed as a share of goodwill, जिसको हम premium for goodwill भी कहते हैं। तो जो इनकमिंग पार्टनर है वो एक कैपिटल के साथ अपना कुछ शेयर भी लाता है, which will help the firm in additional amount to compensate them for the loss of their share in super profit, and उस चीज़ को, उस टर्म को हम गुडविल कहते हैं। Now moving on, from the accounting point of view, there may be different situations which is related to treatment of goodwill, and these are those situations हैं friends. First of all, when the partner brings goodwill in cash, and the second one is when the partner does not bring goodwill in cash or maybe partly or fully. So moving on to our next slide, we have the first situation, that is when the partner brings goodwill in cash. Now the amount of premium, in this case what would be the outcome or accounting, you could say the amount of premium brought in by the new partner, जो भी amount of premium new partner अपनी admission के टाइम पे लाएगा, is to be shared by the existing partners in the ratio of sacrifice। मतलब उनकी sacrificing ratio में जो है वो amount of premium जो है वो अपोर्शन हो जाएगा, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि गुडविल जो है वो आपका कैश में लाया हो न्यू पार्टनर। इफ दिस अमाउंट इज पेड टू द ओल्ड पार्टनर्स डायरेक्टली बाय द न्यू पार्टनर, देन देयर इज नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म, बट व्हेन द अमाउंट इज पेड थ्रू द फर्म, विच इज जनरली द केस। तो जनरली क्या होता है कि
अमाउंट ऑफ गुडविल जो है वो फर्म की ही जो फंड्स होते हैं उसे ही पे किया जाता है। तो उस टाइम पे जो आपकी जर्नल एंट्रीज होंगी, 2 जर्नल एंट्रीज होंगी दोस्तों। आइए देखते हैं उस जर्नल एंट्रीज को। सबसे पहले होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट, एंड द नेक्स्ट वन इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। एंड इसमें जो हमारा गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ लिया है। लेकिन ये सिचुएशन सिर्फ तब रहेगी जब गुडविल जो है इन कैश न्यू पार्टनर ला रहा हो। अल्टरनेटिवली ये जो गुडविल है इट इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड देन एडजस्टेड इन द फेवर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर sacrificing ratio. So in that case the journal entries will be as follows: bank account to new partners capital account, then thereafter the second entry would be new partners capital account and to sacrificing partners capital account. इस पे बेस क्वेश्चन अपनी इस वीडियो के लेटर पार्ट में हम करने वाले हैं। एंड मूविंग ऑन, if the partners decide that the amount of premium for goodwill credited to their capital accounts should be retained in business, an additional entry is not passed. If however they decide to withdraw their amounts, following entry should be passed. तो सपोज क्या होता है कि जो गुडविल का अमाउंट है जो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पार्टनर्स में अपोर्शन हुआ है या बटा है, अगर पार्टनर्स उसे रिटेन करते हैं देन देयर विल बी नो एडिशनल एंट्री, एंड इन केस दे डिसाइडेड टू विथड्रॉ दिस अमाउंट इन द लेटर पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में जो है एक एडिशनल एंट्री पास हो जाएगी, वो हो जाएगी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। यहाँ मैंने इंडिविजुअल लिखा है कि हर एक पार्टनर की अलग अलग एंट्री पास होगी, एक कंसोलिडेटेड अमाउंट की एंट्री नहीं होगी। सपोज 2000 का अमाउंट जो है वो 2 पार्टनर्स में 3:2 के रेशियो में बढ़ जाता है, तो एक कंसोलिडेटेड अमाउंट जैसे 2000 की एंट्री नहीं होगी। ए एंड बी में 3:2 के रेशियो में अगर 2000 बटा है, देन वी हैव 12,000 एंड 8,000, उसकी अलग अलग एंट्री हम दिखाएंगे। एंड द नेम वुड बी ए अकाउंट, बी अकाउंट टू बैंक अकाउंट 12,000, 8,000 and to bank account 20,000. Now in order to understand this concept we have the most beautiful example. So in this example X and Y are the partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3. Now the X is admitted in the firm for 1/5 of the share of profits, and he brings in rupees 20,000 as capital and 4,000 as his share of goodwill by the check. Now we have to pass certain journal entries, but the situations are सबसे पहली सिचुएशन ये है कि पार्टनर्स ने जो है वो डिसाइड करा है कि वो रिटेन करेंगे गुडविल को इन द बिजनेस। सेकेंड सिचुएशन है कि वो फुली विड्रॉ कर लेंगे इन 50%। जो थर्ड सिचुएशन है वो है 50% अमाउंट ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन। तो जो अगर हमारा जो अमाउंट है वो रिटेन होता है, पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि रिटेन करेंगे, देन इन दैट केस फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज वुड बी पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक अकाउंट टू एक्स कैपिटल, जो वो अपनी कैपिटल ला रहा है 20,000, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000, जो अपनी गुडविल वो ला रहा है एंड कैपिटल वो ला रहा है, उसको क्रेडिट कर देंगे एंड बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सिमिलरली जो 4,000 का जो वो कैपिटल गुडविल ला रहा है उसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे, दैट इज 2500, 1500, जो कि हमारा क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ था 5:3। इसमें हम इस प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट लेंगे। नाउ अल्टरनेटिवली जो एंट्री होगी एक्स के बुक्स ऑफ अकाउंट में वो हो जाएगी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू 24,000 से पूरी टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एंड एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू एक्स कैपिटल 2500 एंड वाई कैपिटल 1500, जो उनका रेशियो है 2500, 1500 जो उनका रेशियो है। जो हमने पढ़ा था कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के अकाउंट में जो है वो क्रेडिट हो जाएगा अमाउंट, एंड एक्सेस जो न्यू पार्टनर है उसके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, तो 4,000
इन द रेशियो 5:3 वो अपोर्शन हो जाएगा. वी आर एज्यूमिंग दैट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज द सेम एज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि जो आपकी गुडविल, अगर आप कैश लेकर आ रहे हैं इन गुडविल, जो कि हमने पढ़ा था कि अगर कोई न्यू पार्टनर है वो गुडविल इन कैश ला रहे हैं, देन इन दैट केस द गुडविल शैल बी अपोर्शन इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सो मूविंग ऑन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. यही जो वन वर्ड वाले हैं जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल में करवाया है, एंड कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि व्हाट जनरल एंट्रीज वुड बी पास. तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे. व्हेन द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, तो उस केस में आपको जनरल एंट्रीज के 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको राइट जनरल एंट्री पे जो है वो टिक लगाना होगा. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी थ्योरी में कवर हो सकते हैं. इस वीडियो में जो भी हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी मैं कवर करूंगा अपनी अगली वीडियो में, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक से, इस टॉपिक के पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू एग्जिस्टिंग पार्टनर इज फुली विड्रॉन. पार्टनर्स ने डिसाइड करा कि वो जो गुडविल जो भी उनको मिली है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, वो अगर वो फुली विड्रॉन कर लेते हैं, देन इन दैट केस शुरू की जो 2 एंट्री हैं वो वही रहेंगी, बैंक अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि था 24,000 एंड देयर आफ्टर प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 5:3. बट एट द टाइम ऑफ विड्रॉ ऑफ द गुडविल इन कैश देयर हैज टू बी एन एडिशनल एंट्री पास्ड, दैट इज एक्स कैपिटल अकाउंट जो कि 5:3 का जो उसका अपोर्शनमेंट बन रहा है 2500, वाई कैपिटल अकाउंट जो 5:3 में उसका जो अपोर्शनमेंट बन रहा है 1500, एंड टू बैंक अकाउंट 4000 जो कि प्रीमियम ऑफ गुडविल एक्स अपने साथ लेकर आए हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन. नाउ द थर्ड सिचुएशन इज व्हेन 50% ऑफ द अमाउंट इज विड्रॉन, देन इन दैट केस सेम जो ओपन एंट्री हुई थी आपकी एक्स कैपिटल बैंक टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सेकेंड वन इज प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स वाई कैपिटल इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एंड जब विड्रॉ होगा तो एक्स कैपिटल अकाउंट 1250, 750 एंड 2000 जो है वो एंट्री हो जाएगी, क्योंकि 50% ही हम विड्रॉ करें तो इस केस में एक्स का जो शेयर होगा गुडविल में जो कि विड्रॉ हो रही है वो होगा 50% ऑफ द 5:3, दैट इज 2000 into 5 divided by 8 into 50%, that is 1250, and Y's capital would be 750 in this case. Moving on to our next concept, we have when the new partner does not bring goodwill in cash, or it is and you can say when the new partner is bringing cash in parts, not fully in cash. So in this case we will be debiting the current account of a new partner, while sacrificing partner capital accounts will be credited for their respective shares. And when the new partner does not bring the share of goodwill, जब न्यू पार्टनर जो है वो कैपिटल के साथ अगर गुडविल नहीं लाता है तो देयर एग्जिस्ट 2 पॉसिबिलिटीज. सबसे पहली, गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स. ठीक है, गुडविल होती ही नहीं है एंड गुडविल एग्जिस्ट है. तो इस केस में भी हम अपनी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर करने वाले हैं एंड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी करने वाले हैं. सो इफ द गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स, अगर गुडविल एग्जिस्ट नहीं होती है, देन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं और अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशो में वो सेक्रीफाइसिंग अपना कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कुछ पार्ट जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर द न्यू इनकमिंग पार्टनर. सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स आर क्रेडिटेड विद देयर शेयर ऑफ गुडविल एंड न्यू पार्टनर इज डेबिटेड बाय द अमाउंट ऑफ गुडविल नॉट ब्रॉट बाय हिम. नॉट, सो it is important to know it is important to think about the significance of amount of goodwill not brought by him, that is the incoming partner, and we will be covering the practical questions related to this particular clause as well.
Now in this case the journal entry would be incoming partners, that is new partners current account debit, and to sacrificing partners capital account, और जो अमाउंट होगा वो शो हो जाएगा जो गुडविल वो नहीं लेकर आ रहा है, जो न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लेकर आ रहा है. तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इन थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली गुडविल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे होती है. और इससे रिलेटेड डेफिनेटली एक क्वेश्चन या बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो कवर होने वाले हैं, नॉट ओनली इन न्यूमेरिकल्स बट ऑल्सो इन थ्योरेटिकल. आपको जनरल एंट्रीज पूछी जा सकती हैं डिफरेंट केसेस में, तो जनरल एंट्रीज प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा. नाउ मूविंग ऑन, वी हैव व्हेन द गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स. जब गुडविल एग्जिस्ट करती है इन बुक्स में, देन इन दैट केस गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स विल बी रिटर्न ऑफ बाय डेबिटिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट in their profit sharing ratio, and after that the new value of goodwill will be given effect by crediting sacrificing partners capital accounts and debiting new partners current account. Now there is a concept called hidden goodwill. So hidden goodwill or inferred goodwill is the excess of desired total capital of the firm over the actual combined capital of all the partners of the firm. So suppose दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, 10,000 दोनों की कैपिटल है, एंड जेड को एडमिट करते हैं 20,000 की कैपिटल वो लेकर आ रहा है अपने साथ. तो 40,000 जो है वो कैपिटल हो जाती है ओवरऑल कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स. बट सिंस आपकी जो कैपिटल है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, एवन होना चाहिए तीनों पार्टनर्स के बीच में, तो जो टोटल एलिजिबल कैपिटल है, जो टोटल कैपिटल आपकी फर्म की होनी चाहिए वो होनी चाहिए 20,000, जो कि जेड लेकर आ रहा है उसे के इक्वल. तो 20,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 60,000, एंड आपकी जो एक्चुअल कंबाइंड कैपिटल है वो है 40,000. देन इन दैट केस 20,000 वुड बी द हिडन गुडविल. सो इसमें से क्वेश्चंस आ सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हिडन गुडविल. आपसे पूछा जा सकता है कि हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या है, प्लस एक छोटा सा न्यूमेरिकल, एक केस स्टडी बेस्ड न्यूमेरिकल जो है वो आपको दिया जा सकता है, और उस बेसिस से पूछा सकता है कि क्या अमाउंट होगा हिडन गुडविल का इस केस में. तो हम कवर करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट को और समझने के लिए. सो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल का, वो ये है नेटवर्थ ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर, जिसमें कि लिखा हुआ है इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर. तो सपोज जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया, Z 20,000 की कैपिटल लेकर आता है, बट सिंस उसका जो शेयर है 1/5 है, तो अगर 1/5 20,000 है, देन इन दैट केस 1 लाख वुड बी द कैपिटल, और 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 10,000 120 जो है वो टोटल फर्म ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होनी चाहिए. बट अभी जो है वो आपका बन रहा है 1 लाख इंटू 3, जो कि 3 लाख जो है वो होना चाहिए, और ओवरऑल जो कंबाइंड कैपिटल जो अभी आपका बन रहा है 1 लाख प्लस 10 लाख प्लस 10 लाख दैट इज 120. सो 180 का जो हो जाएगा वो आपका हिडन गुडविल हो जाएगा, और उसी बेसिस पे हमारी जो है कैलकुलेशन हुई है. सो नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल, इट इज hereby written net worth including goodwill on the basis of capital brought in by incoming partner minus net worth excluding goodwill of the reconstituted firm including incoming partners capital account, and the resultant value would be the hidden goodwill. तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से और भी क्लियर हो जाए. So suppose A and B are partners and they are sharing profits equally with the capital of 45,000 each. So अभी उनकी कैपिटल कितनी होगी, 45,000 each है, तो 45,000 into 45,000 plus 45,000 90,000, and thereafter they admitted C as a new partner for 1/3 share in the profit, and C brings in rupees 60,000 as his capital. तो based on the amount brought in by C, I am reading it in verbatim.
ताकि आपको, और बीच बीच में मैं मतलब इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा ताकि आपको इजीली समझ में आ सके ये कॉन्सेप्ट. बेस्ड ऑन द अमाउंट brought in by C and his share in profit, the total capital of the newly constituted firm works out to be rupees 1,80,000. जो 60,000 उसका अमाउंट है प्लस वो 1/3 शेयर के लिए आया तो 60,000 into 3 180,000. बट द एक्चुअल टोटल कैपिटल ऑफ A, B and C वर्क्स आउट एज रुपीज 1,50,000 जो कि हुआ 45,000 plus 45,000 plus 60,000. Hence, it can be inferred that the difference is on account of goodwill, that is rupees 30,000, जो कि हुआ 1,80,000 minus 150,000. And this 30,000 is going to be shared equally by A and B, जो कि उनका ओल्ड रेशियो है, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि वो इक्वली शेयर कर रहे हैं. And this shall raise their capitals to rupees 60,000 each, and the total capital of the firm would be 1,80,000. और इस केस में जो आपकी अकाउंटिंग हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी? C's current account will be debited by rupees 10,000, which is his share of goodwill, and A and B's capital account will be credited by the 5,000 each. So जो एडमिटिंग पार्टनर है, जो न्यू इनकमिंग पार्टनर है, उसका अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, एंड जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा. इस कॉन्सेप्ट को और जो अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उनको हम कवर कर लेंगे अपनी नेक्स्ट क्वेश्चंस में. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, R&S आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, एंड देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज 80,000 and 50,000 respectively. And thereafter they decided to admit T on January 1st, 2021 as a new partner for 1/5 in the future profits. अब जो T है वो लेकर आता है अपने साथ 60,000 की कैपिटल. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है गुडविल ऑफ द फर्म एंड जो जर्नल एंट्रीज हैं, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज हैं ऑन T's एडमिशन. सो पहली कंडीशन रहेगी कि T brings his share of goodwill, and next condition would be T does not bring his share of goodwill. Okay, so ये एक टेबल मैंने बना दिया है जिसमें साइड में मैंने दोनों जो हमारे सिचुएशंस हैं उनको कवर कर लिया है. तो सबसे पहले कवर कर लेते हैं एट द टाइम व्हेन T brings his share of goodwill. तो उस केस में क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 80,000, T's कैपिटल अकाउंट 60,000 जो कि वो लेकर आ रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल 22,000. अब हमें देखना है कि 22,000 कैसे आ रहा है. 60,000 की कैपिटल आप देख सकते हैं कि T ला रहा है एट द टाइम ऑफ इस एडमिशन, और उसको 1/5 ऑफ शेयर मिलने वाला है फ्यूचर प्रॉफिट्स में. तो 1/5 ऑफ शेयर अगर 60,000 है, देन द टोटल कैपिटल, टोटल नेटवर्थ ऑफ द फर्म शुड बी 60,000 into 5, that is 3 lakh. और अगर हम कंबाइंड कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म देखें तो 80,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 ये हो जाते हैं हमारे 1,90,000. तो हिडन गुडविल हमारा जो हो रहा है वो हो रहा है 1,10,000, that is 3 lakh minus 1,90,000 and is equal to 1,10,000. और जिसमें से जो T का शेयर है वो है 1/5, दैट इज 22,000. तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है 22,000 हो जाएगा इस केस में. एंड इससे रिलेटेड जो वर्किंग नोट्स हैं मैंने अपनी नेक्स्ट स्लाइड में जो है बना रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं. मैं आपको बताता हूँ. T's कैपिटल जो है 60,000 थी, उसका जो शेयर था 1/5 था, एंड टोटल कैपिटल फर्म इस केस में बन जाती है 3 लाख. और जो इंडिविजुअल शेयर को कंबाइन करके हम जो देखते हैं overall capital of the firm, that will be 1,90,000. So hidden goodwill is 1,10,000 and T's share क्योंकि 1/5 है तो 22,000. तो अपने साथ वो 22,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है. तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट 82,000 से, T's कैपिटल 60,000 जो कि ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल 22,000. एंड जो 22,000 है वो आपका डिवाइड हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. 22,000, R's capital is 13,200 and
8800। तो इस केस में हम अपना जो है पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे एंड देयर आफ्टर वी आर एज्यूमिंग कि जो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो ओल्ड रेशियो ही है इस क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि सेक्रीफाइस हो रहा है कुछ पार्ट, तो उस केस में हम जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बेसिस पे प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री पास होगी। अगर नहीं लिखा है तो हम ये मान के चलते हैं, जैसा हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस स्लाइड में, अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं जो एग्जिस्टिंग जो सारे पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स in their old ratio and their sacrificing ratio is in the old profit sharing ratio. So R's capital account 13,200, that is 28,000 into 3 by 5, that is 3:2, and S capital would be 8,800, that is 22,000 into 2 by 5. In the second situation, T does not bring his share of goodwill. तो इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं होगी, जो हमने वर्किंग नोट्स देखा है उसकी कैलकुलेशन नहीं होगी, सीधा एंट्री होगी बैंक अकाउंट ₹60,000 जो अपने कैपिटल लाया है एंड टीज कैपिटल अकाउंट 60,000। तो उस केस में प्रीमियम फॉर गुडविल की जो है वो एंट्री नहीं होगी, और जो टी का करंट अकाउंट है जो हमने अभी जो गुडविल निकाली है उसकी, टी का जो करंट अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, आर का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएंगे 13,200 और 8,800 से। तो आज की वीडियो में हमारा ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है वो कवर हो जाता है, एंड अगली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस कि क्या होता है, एंड उसके बाद 2 एडजस्टमेंट्स और हैं जो हमें कवर करनी है। तो दिस इज इट गाइस। आपकी कोई भी क्वेरीज हो इस टॉपिक से रिलेटेड या प्रीवियस मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप अपनी क्वेरीज जो हैं वो इस वीडियो के या उन सब वीडियोस के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, एंड अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ इन सभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ MCQs जो कि एक्सपेक्टेड है आपके CBSE एग्जाम्स में आए। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी आखिरी तक देखिएगा, और कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे उस क्वेरीज को पोस्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हो। सो थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जिनके एग्ज़ाम्स अभी आने वाले हैं दिसंबर में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।